आपने शेप्स बताने हैं और साथ में फंक्शन भी बताने हैं. Some cells like RBCs have a circular and biconcave shape so as to pass through narrow capillary walls and so as to transport the oxygen. Some cells like WBCs have a amoeboid shape, which helps. This shape helps in the movement like a amoeba and to pass through narrow capillary walls. Some cells are long. Loud बोलना है. Some cells are long like nerve cells which helps them to transmit the nerve impulses from the body parts to the brain and vice versa. Some muscle cells are long and contractile, which helps them for the movement of the living organism. And some cells like the stomata are bean shaped so as to let the various gases in and out of this leaf. दिव्योत, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ? मल्टीसेलुलर क्या? लॉन्गेस्ट? नर्व सेल. और what does the cell theory mean? The cell theory mainly means that all cells comprising of animal cell and plant cell have this act as a cell structural and functional unit of all living beings. And the cells generally the animal and plant cell arise from the pre-existing cells in the living organisms. नहीं, तुमने ये सारे पॉइंट्स नहीं याद किए? चारों? मैं चारों याद कर रही हूँ. एक्सप्लेनेशन मैं बताऊँ ये बताने हैं. और क्या? ओके. दो तुमने बतानी है, दो देवजोत बताएगा. मैं पहले दो ये बाकी दो ये. Okay. Number one is structural unit. If you observe the part of the mango tree and a frog, under a microscope, we will observe that it contains cellular structure, thus proving these act as a structural unit of life. If functional unit, if we observe the parts of the mango tree and the part of a frog and under a microscope, we will observe that all the cells have perform various functions due to cellular activity. हाँ बोल. The cell has the capacity to replace and repair the cells and they grow new cells. Example. इसमें पूरे एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए? मैंगो, फ्रॉग, बस फिर वही लिया सारे. अगर बोल दे सकते हैं, बट अगर उसको तो वही बोल, यहाँ वाला तो बोल दे एटलीस्ट. मैं कुछ. हाँ बोलो. मोस्ट नेक्स्ट पॉइंट. द सेल starts the life as a single unit called zygote. In case of एग्जाम्पल दोनों को रिलेट कर रहे हो ना आप. Who discovered microscope? Simple microscope. What is cell? The cell is the structural and functional unit of the living beings that is capable of independent existence. And who is Robert Hooke? Robert Hooke is the scientist who discovered who invented the compound microscope by using two concave lenses. The compound microscope consists of a stage on which the sample is kept and a light source, which is the oil film from which the light source is. अभी टाइम है, प्लांट और एनिमल सेल ड्रॉ करो, क्योंकि कल हो सकता है फिर ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा डाटा हो कल के टॉपिक में, फिर है ना. आज कंपनसेट 7-10-15 तक फ्री हो जाओगे आप. आओ तुम्हें सुनाना है. कौन कौन सा किया है? अच्छे से किए ना. What does the word medieval means in history? The word medieval stands for something located in middle,
something located in middle. Medieval period is located in the middle center of Asian and modern period. There are two sources of medieval period: archaeological and literature. लिटरेरी, ये स्पेलिंग ढंग से क्यों नहीं लिखते हैं? आगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंस्क्रिप्शन एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री मेडिवल. Inscription is considered as most reliable Asian history. रिलायबल सोर्स. Reliable source of Asian history. एशियन क्या? एंशियंट. Ancient history. हाँ. They give us. They are generally devoid of myths. myths होते हैं सोसाइटी में जो ऐसे ही बातें फैला देते हैं जानबूझ के. ऐसे आता है, रात को शेर आता है, ऐसी कुछ बातें जो नकली सी बातें होती हैं, वो एंशियंट पीरियड में नहीं होती थी. And बोलो. डिवॉइड ऑफ मतलब नहीं होती थी. मिथ्स नहीं होते थे मतलब नकली सी अजीब सी बातें जो हैं वो एंशियंट पीरियड में नहीं होती. डिवॉइड ऑफ नहीं होती थी. डिवॉइड मतलब नहीं होती थी. मिथ्स नहीं होते थे. ठीक है. generally डिवॉइड myths and facts. ढंग से बोलो. डिवॉइड ऑफ मिथ्स. Devoid of myths and truths. नहीं, facts. काफ़ी है. डिवॉइड ऑफ मिथ्स एंड नैरेट फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स पे बात करते थे. असली जो बात बोलते थे उसका कोई ना कोई रीज़न होता था कि ये इस वजह से है. ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाते थे. And narrate narrate the facts. Narrate the facts. Full stop. आपने ना मुझे यही सुनाने हैं तीन, ये और ये, बट ढंग से सुनाने हैं प्रॉपर. तुम्हें मतलब पता हो. तुम्हें मीनिंग पता था इनका. मिथ्स का मतलब पता नहीं है. मैडम बताती नहीं है. मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाया, मुझे ये कहीं नहीं मिला था. तो अभी ये सुन लो. ये बोल रहे हैं इंस्क्रिप्शन आर कंसिडर मोस्ट रिलायबल मतलब बहुत अच्छा सोर्स है पुराने उसका. क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो हैं उनमें कुछ भी झूठ सच नहीं है. मतलब सब सच है, झूठ नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है. और वो फैक्ट्स पे आधारित है. जब मैडम आपको कोई स्टोरी सुनाती है, स्कूल में जाते हो आप, मैडम आपको एक पेज पढ़ाती है और उसको समझाती है, तो वो क्या कर रही है? मैडम आपको नरेट कर रही है, उस पेज को बता रही है. तो ये जो जितनी भी बातें हैं क्या कह रहे हैं, जनरली डिवाइड ऑफ मिथ्स. तो एंशियंट हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छा सोर्स था. किस चीज़ का? इन्फॉर्मेशन का. और उसमें ना वो फैक्ट्स पे आधारित था, वो मिथ्स पे थी ना, झूठी बातों पे आधारित नहीं था. खत्म हो गई बात. ऑल्दो वी हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ लिटरेरी, बोलते लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास बहुत है. दो सोर्सेज हैं ना, इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी. तो कह रहे हैं ऑल्दो उस टाइम के लिटरेरी सोर्सेज भी काफ़ी हैं. किसके? एंशियंट टाइम के. दे आर मोस्टली रिलीजियस और वो धर्म के ऊपर बेस्ड है. किसके ऊपर बेस्ड है? धर्म के ऊपर बेस्ड है. इन देम, ये क्या है? ये क्या याद किया था तुमने? एंड सफर फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अच्छा, ये दे आर मोस्टली रिलीजियस इन देम एंड सफर फ्रॉम एंड देयर. ये तो गलत, ये नहीं है. मोस्टली रिलीजियस इतना काफ़ी है. दे आर मोस्टली रिलीजियस. ठीक है. और अगर मैडम इसको ठीक करवाएगी, इस लाइन को क्लियर कराएगी, तो मुझे बताना. हमें क्लियर नहीं हो रही मुझे ये लाइन. ठीक है. तो आप ये यहाँ तक याद कर लो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या है ये? न्यूमिस्टिक एंड एपिग्राफी. मुझे याद है. ये तो लर्न है आपको ना, अच्छे से सुनाओ. न्यूमिस्टिक इज द स्टडी ऑफ coins and papers.
बस काफ़ी है इतना। आगे जोसेफ Joseph Staff is known as the father of numismatic, and the James Passive is known as the father of Indian numismatic. क्वेश्चन था कि न्यूमेस्टिक और एपिग्राफी बताओ। एपिग्राफी नहीं बताया आपने, क्या होती है मैंने ये लिखा था। बताओ ना, ये इससे आगे आपने, मैंने सुना नहीं यहाँ पे। Epigraphy is studying science of inscriptions written. इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स एज राइटिंग। एपिग्राफ्स एज राइटिंग ढंग से याद करो यार। याद करना है, फिर याद करना है, फिर क्या है याद। तीनों दोबारा, ये वाला मुझे अच्छे से चाहिए, ये वाला आंसर दोबारा सुनाओ इसको। समझ आ गई? और ये नाम भी आपने ढंग से नहीं बोला। जोसेफ, ये क्या है? रैकल है ये। स्पेलिंग सी ढंग से नहीं लिखते तुम, स्पेलिंग ढंग से लिखा करो। चल आ जाओ 10th क्लास। 2 को छोड़ दो, बाकी सुनाओ फटाफट। आप जसकीरत, आपको कितने याद हुए? छोड़ दो उनको, आप भी आ जाओ। तन्वी, ढंग थोड़े करने हैं क्वेश्चंस, पर ढंग से करने हैं वो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और स्कूल में इतनी मैडम लिखवाती है, उसमें भी स्पेलिंग्स गलत करके आ जाते हो इतनी सारी। हो गया? कुछ पार्ट्स आपने ये देख के बनाया? जब भी डायग्राम बनाना है बेटा, पेंसिल लिया करो। ये क्या, इसका पूरा नाम क्या है? लिखो ना, तेज आ जाओ, बस जल्दी कर लो। क्या जाओ, छुट्टी करो, मम्मा आएंगे, कॉल करो। हाँ, ये 21st क्वेश्चन और 19th वाला नहीं है, बाकी सारे कर लिए। ये कल नहीं किया था? कौन सा? ये इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में कल सब कुछ लर्न करके जाना था, करके नहीं गए इसको? उसके बारे में लर्न किया था, पर ये आंसर करने थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। मैं सुनती हूँ। अच्छा, ये 2 नहीं आते आपको, बाकी सब आते हैं। मतलब ये 21 क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 नहीं आते और 19 आते हैं। 21 और ये वाला। हाँ 19, हाँ 2 क्वेश्चन नहीं आते। जो आपने 3 काटा है, कौन कौन से? ओके, मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन किया। हाँ ठीक है, छुट्टी करो। सुनाना मुझे। Where do plants get each of the raw material required for the photosynthesis? Loud सुनाना। The raw materials required for the photosynthesis in plants are carbon dioxide and water. The carbon dioxide can be acquired by the plant fairly easy in the air, and water is obtained by the plants through the roots. The energy required for the photosynthesis process is acquired by the chlorophyll from the sun in the form of light. बेटा आप सुनाओ।
ये क्वेश्चन किए है ना आपने, व्हाट एडवांटेज ओवर एनएक्विटी की करवाया है मैंने। हाँ जी कर रहा है। The terrestrial organisms take the oxygen which is present in the atmosphere, and the aquatic animals take the oxygen which is present in the water. The amount of oxygen present in water is fairly low as compared to the atmosphere. So we see that the aquatic plants breathe faster as compared to the terrestrial organisms. And also there is one more advantage of this, that the terrestrial organisms, that the solubility increases with increase in temperature. So the oxygen सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से नहीं बढ़ती है, कम होती है। ठंडे The solubility of the oxygen decreases as the temperature, which means that तो मैं अभी बना रही हूँ मैं थोड़े aquatic decreases with the temperature. So the which implies that aquatic plants have difficulty in summers to breathe. उस टाइम गर्म होता है ना पानी, वो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस in which glucose is oxidized? Firstly, absence of oxygen, which happens in the yeast. हो गया, सुना दो भैया को। ओके। Glucose is broken down by the process of glycolysis. There are 3 cases in which the glycolysis. ढंग से सुनाओ, ढंग से दोबारा बोलो। When the glucose breakdowns, the process is called glycolysis. The process of glycolysis happens in 3 cases. Firstly, ग्लाइकोलाइसिस टूट गया, ग्लूकोज टूटा, क्या बनाएगा स्टेप में, वो आंसर तो दो। it creates pyruvate plus energy, which contains 3. कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा? 2 है। मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पूछा मैंने, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा। मॉलिक्यूल्स तो 2 ही बनेंगे पायरुवेट के। एटीपी कितनी है? 2. आपको आता है ये? बोलो। The glucose have 6 molecules of carbon which break down into pyruvate. बस इससे सुन लेना 3 क्वेश्चन। Which break down into pyruvate with the presence of energy, and this process is called glycolysis. The pyruvate further is ऐसा करो, शुरू के 10 क्वेश्चन सुनाओ, लेकिन अच्छे से सुनाओ। तुम्हारे पास 10 मिनट है, पूरे 10 मिनट है दोनों के पास। पहले हाँ, पहले 10 क्वेश्चन ढंग से सुनाना है जितना करना है।